and welcome to a very special episode of Agenda. We're coming to you live from Vidisha, and it actually marks the last of a series from here in Madhya Pradesh. Now, Vidisha, of course, anyone reading the papers, following current affairs and political news knows it is a VIP constituency. It is Sushma Swaraj's constituency. Also, why it hit the headlines this time round is because Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has chosen this spot, this constituency, to make his second constituency, which everyone got speculating about. Why is it that he's contesting from two places? Now, what we have, as usual, of course, on Agenda, we'll be talking about lots of issues, but we have from the BJP, we have Supreet Kaur, and we have the Congress candidate from the area, Shashank Bhargav. They'll be taking questions, and of course, a fantastic crowd of the people of Vidisha. They'll tell us what is it that they want to change. Yes, a round of applause for all of you, and of course for democracy. So yes, the people of Vidisha over here, they're going to talk to us. But let's take a look at some of the issues that has been concerning the debate, the political campaign which ends day after tomorrow in Madhya Pradesh. There have been these personal attacks that have been taking place. Look at the ad wars that have happened. Basically, the BJP has been saying that today they took out this whole campaign against a union minister and a leader from Madhya Pradesh, from Chhindwara, Kamal Nath, saying that he is Bantadhar ka avatar number 2. And of course, in return, the Congress as well has hit back saying Feku number 2 to Shivraj Singh Chauhan, because they're saying that he has taken out ads which shows other places like shots of America and shots of UK and making them look like it's from MP. So these kind of ad campaigns happen. But what's very, very politically quite sharp really is the attack that they have lodged at the Chief Minister and his wife, especially Sadhana Singh, where they have said that in fact one ad suggested that they were looting, that they were greedy, and they suggested corruption, after which the Chief Minister and his wife have sent legal notice to the Congress President, Sonia Gandhi. Now, I spoke with her earlier in the day because she is the one campaigning here in Vidisha. I spoke to her earlier in the day, and this is what she said. Well, we are just outside Vidisha, and of course, this is the VIP constituency, Sushma Swaraj's constituency. But why it's making news this time is because Chief Minister Shivraj Singh Chauhan is competing from here, and with me, his wife, and someone would say his main political manager, Sadhana Singh ji. Sadhana Singh ji, well, thanks very much for speaking to NDTV. आपका ये जो कैंपेन चल रहा है, कैसा चल रहा है, आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जनता का रिस्पांस मिल रहा है जी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खुशी है लोगों में कि उनके भैया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भैया, और आपने कहा कि आपको मैंने देखा है कि पास में एवरीबडी कॉल्स यू भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, सब लोग मुझे भाभी जी के नाम से जानते हैं। हम तो बाहर में जब भी हम whenever we see his speeches, he likes to be called मामा जी. So there is a real family kind of feeling. बिल्कुल हमारा परिवार जैसा ही है यहाँ पे, चाहे मध्य प्रदेश में बोलो, चाहे विदिशा में बोलो, हर जगह परिवार की दृष्टि से ही रहते हैं। हमारा घर घर तक के संबंध है। साधा जी, ये पूछना था कि आप ये पूरा इलाका आप संभाल रही हैं? बिकॉज मैं और मेरे अलावा मेरे कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। मैं तो सिर्फ भाभी के रूप में उनके बीच बीच में जा रही हूँ। और आपके जो बेटे हैं कार्तिक भी, वो वहाँ पे भी कार्यकर्ता बुधनी का देख रहे हैं। हम लोग यही देख रहे थे, कांग्रेस का ऑफ कोर्स ये एलिगेशन है कि क्योंकि आप लोगों को थोड़ा वीक लग रहा है। कहीं कोई वीक नहीं है। That is why CM is fighting from two constituencies. तो आप हमारे कोई नहीं है, आपको ये गलत फहमी है। कार्यकर्ता का प्रेम था जो यहाँ खींच के लाया है। उनको लगा यहाँ से उनके भैया सांसद बने थे, उनकी इच्छा है कि यहीं से विधायक बने, तो इसी उसमें आए हुए है। तो लोगों को जब दो कॉन्स्टिट्यूंसीज कोई लड़ता है साधना जी, then what happens अगर वो दोनों जीते? बिल्कुल भारी बहुमत से दोनों जीतेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? कौन सा? क्योंकि बुधनी भी उनका है, और जैसे आपने कहा, ये तो फिर कार्यकर्ताओं का वो होगा कि जैसा वो चाहेंगे वैसा रखेंगे। अच्छा साधना जी, एक चीज आपसे पूछना था, अगर इस बार अगर हम देखें तो पूरे नेशनल में जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। हमारे आपको भी उन लोगों ने काफी अटैक किया है। तो क्या है, विपक्ष की आदत होती है कि आरोप लगाओ, ऐसा कोई आरोप नहीं है।
हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन हम लोग को मिल रहा है। सोनिया जी को आपने जो नोटिस नहीं, भेजा मैं है, तो इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन मैं तो- क्या उन लोगों ने माफी मांगी है? क्योंकि आप लोगों ने उनको 7 दिन का टाइम दिया था, क्या किसी ने ये माफी? हमारे वकील बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज साधना जी, ये पूछना था कि ये जो बाकी जो ये लोग जो पर्सनल अटैक करते रहते हैं, वो तो उनकी फितरत में ही है पर्सनल अटैक करना। हम तो अपना काम करते हैं और काम के हिसाब से वोट मांगते हैं। तो आप लोग कैसे उसको काउंटर करते हैं? वो तो वकील साहब देख, मैं तो काम में लगी हुई हूँ। एक और चीज, ये लोगों ने आज ऐड निकाला है और कुछ दिन पहले भी ऐड निकालते हैं कि वो लालची है, नोट की मशीन वगैरह। ये फालतू बकवास है। हम लोग इसके हिसाब में वहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब क्या है, खिसियानी भी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ आ रही है, तो ये सोच करके उन लोग त्रस्त हो ये गए। सब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते तो हैं। आप लोग, आपको डर नहीं लगता है कि इस बिल्कुल वजह डर नहीं, से? बिल्कुल डर नहीं, कहीं कोई डरने की बात ही नहीं है। काम किया है, काम के आधार पर विकास किया, विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैम कुछ बोल रही है। नहीं नहीं, आपको डर नहीं लगता है कि ये जो झूठ का जो ये तो देखो, सर जी मैम बोल रही हैं, साधना जी बोल रही हैं, मैं ये कह रही थी कि आप ये लोग इतना वो एड वगैरह निकालते हैं, आपको डर लगता है हमें कि किसी से डर लोग नहीं उसको लगता। विश्वास करना लगेंगे? नहीं नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता है। हमारे साथ में जनता का प्रेम है, जो सच्चा है वो सच्चाई आपको दिख रही है। जनता इस मामले में हमारे साथ में है। आपके बेटे क्या कॉन्टेस्ट करेंगे क्या? अभी दो मेरे सीटें से- अभी मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, सिम्बोसिस में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। कार्तिकेय सिंह तो है। अभी नहीं बनेगा वो अभी नेता। तो वो 19 साल का है। साधना जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।